onwards, I am going to share GJU BSc first year second semester topics of descriptive statistics on my YouTube channel, and I will be sharing the syllabus of that soon on my YouTube channel. Now today we are going to start our first unit of descriptive statistics. Now first, what is this descriptive statistics? In the first semester, you have just read about the basic statistics. In the basic statistics, you have done about mean, median, mode, variance, standard deviation, that all. That is included in the part of basic statistics. In this descriptive statistics, what we are going to study, first unit, in that I will cover probability. Now, what do you mean by this term descriptive statistics? Descriptive means we will be going to the depth of the statistics now. That why this term has been introduced, what are the reasons for that. So we are going to discuss that all in the descriptive statistics. Now our first unit is about the probability. You have already done in your this 12th class. Now if I say some statements, it is I think that it is going to rain today. I think Shamu will come tonight for the party. From these sentences, you are able to know that these sentences are not sure. Means we are not sure that they may happen, they may also not happen. So we are not sure about these sentences. So that is only probability. Probability means the measure of uncertainness. किसी भी uncertain चीज को हम measure किस तरीके से कर रहे हैं. Now before going to statistics examples, we shall discuss first some terms related to the statistics. Related to probability. Now, first term is your experiment. Just like you perform experiment in your physics and chemistry, same way we will perform our experiments in probability. Now, what do you mean by this term experiment? Experiment, it is basically a process of making an observation. किसी भी observation को हम देख के कुछ उसकी readings नोट करते हैं, जैसे आप फिजिक्स में नोट करते हो, केमिस्ट्री में नोट करते हो, वैसे ये प्रोसेस है मेकिंग करने का एक ऑब्जर्वेशन. जैसे इफ आई टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंट, सपोज आई थ्रो अ डाइस, मैंने एक डाइस थ्रो किया, सो दैट इज माय एक्सपेरिमेंट दैट आई एम परफॉर्मिंग, एंड देन फ्रॉम दैट आई एम नोटिंग द आउटकम्स. तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, उसको यहाँ पे हम बोलते हैं आउटकम्स. आई थ्रो अ डाइस and I noted that any number that is even on that, reading the probability of that, so we will get some outcomes, results, जिसको बोलते हैं results. तो हमने basically क्या perform किया, experiment perform किया. Now the correct definition of experiment is it is a process of making an observation. Now the term experiment refers to describe an act which is repeated under some condition. कि हमने इस experiment को कुछ repeat किया है कुछ some condition में. Just for example, it is given that tossing a coin, throwing a dice, etc. Now there are two types of experiment. First is random experiment and next is deterministic experiment. Spelling देख लेते हैं एक बार. Deterministic experiment. डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हमें आउटकम्स जो होते हैं उस एक्सपेरिमेंट के यूनिक हो, और इसमें नॉट यूनिक. जस्ट फॉर एग्जांपल, if I give you a triangle and I not tell you the angles, but you will be already aware that the sum of angles is 180 degree. That is a deterministic experiment. That means the value is unique. If I talk about a random experiment, for example, it is given tossing a coin. It may come head also, it may come tail also. So therefore it is not unique or not fixed. Fixed नहीं है random में, और deterministic में क्या है हमारे पास fixed है. Next we have the term chance. Like you get a chance to win a lottery. मतलब sure नहीं आपको 100% मिलेगा या नहीं मिलेगा, but you had a probability that you may get. So chance is not actual basically 100%.
बट वी डू नॉट नो द एक्चुअल आउटकम्स ऑल्सो। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि हम जीत जाएंगे, एक्चुअली जीत जाएंगे या नहीं जीत जाएंगे, तो दैट इज चांस। नेक्स्ट टर्म I have is the trial. Trial, and related to this I have a term event. Trial and event. Now, what is trial? A particular performance of a random experiment is called the trial. Basically try करना ना, try से ही आया ना word trial, तो basically performance we can say, और परफॉर्मेंस के जो रिजल्ट्स आएंगे, जो इवेंट होंगे, उसको हम बोलेंगे इवेंट। जैसे मैंने कॉइन टॉस किया, सो टॉसिंग अ कॉइन इज अ ट्रायल, बट द आउटकम्स दैट इज हेड एंड टेल इट इज द इवेंट जो हमारे पास आने वाला है। नाउ आई रीड द डेफिनेशन फ्रॉम योर बुक। एंड पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल एंड द आउटकम दैट आर ऑब्टेन्ड इज नोन एज द इवेंट। Now we have next terms, that is the sample space. Sample space means जितने भी हमारे पास possible outcomes हैं उनका collection, the universe collection of your, मतलब जो भी आप input दे रहे हो, जो भी आपके outcomes हैं random experiment के। Next I have the term event. Event तो मैंने आपको already बता दिया। इवेंट्स क्या होता है हमारे पास, जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट। फर्स्ट इज सिंपल इवेंट, जब हमें पता है हमारा आउटकम तो एक ही आ रहा है, वी हैव अ वन आउटकम। नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल और कंपाउंड इवेंट, व्हेन देयर आर मोर देन टू आउटकम्स, नेक्स्ट वी हैव द श्योर इवेंट, व्हेन वी नो दैट ये पक्का ही होगा। और लास्ट नल इवेंट, नल इवेंट या फिर इम्पॉसिबल इवेंट भी कह सकते हैं इसको, जो पॉसिबल ही नहीं है। फॉर सिंपल इवेंट वी हैव एन एग्जांपल, जैसे हमने 3 कॉइन टॉस किए, सो H H H, दिस इज नोन एज अ सिंपल इवेंट। मल्टीपल इवेंट, जब मैंने 3 कॉइन्स टॉस किए एंड आई से दैट कोई भी आंसर आ सकता है, so we have H H H H T H, there are different outcomes, लेकिन मैंने आप फिक्स कर दिया कि तीनों कॉइन्स में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। श्योर इवेंट, अब मैंने कॉइन टॉस किया, हेड या टेल आना, ये तो श्योर बात है ना, यूँ तो है नहीं कुछ नहीं आएगा। नल इवेंट, जैसे मैंने कहा आई हैव थ्रोन अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7, तो उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम नल इवेंट या फिर इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट वी हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, जब हमारे पास आउटकम्स क्या हो, इक्वली लाइकली, मतलब दोनों में से कोई भी आ सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इन ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड, ऑल 52 पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली, 52 में से 52 ही इक्वली आ सकते हैं, दैट इज नोन एज योर इक्वली आउटकम इवेंट्स। नो नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। नेक्स्ट वी हैव द टर्म कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। इसको मैं सेट से समझाती हूँ आपको। जैसे आपने सेट में पढ़ा होगा कि अगर हमारे लिए कोई सेट है, तो इसको छोड़ के बचा हुआ सारा जो हमारे पास होता है उसको कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। नाउ दिस कॉम्प्लीमेंट, इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इवेंट इज नोटेड बाय EC, and there are more terms, E dash, E bar, so this is known as the complement of the event, मतलब उसको छोड़ के बाकी सभी चीजें आ रही है तो वो कॉम्प्लीमेंट है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा इफ E इज द इवेंट, सैंपल स्पेस है हमारे पास H H H T T H and T T, और एग्जाम्पल है एट लीस्ट वन टेल अपीयर्स, एट लीस्ट वन टेल अपीयर्स। नाउ इस वन टेल को, मतलब 0 टेल को छोड़ के बाकी सारे आएंगे, मतलब अगर ये सेट हमारा 0 टेल का है तो बाकी सब आएंगे। 1 टेल मतलब ये और ये, लेकिन ये नहीं आएगा, तो मतलब हम कह सकते हैं कि किसका कॉम्प्लीमेंट है, 0 टेल का, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। नाउ नेक्स्ट वी हैव A union B,
इवेंट ए और बी। नेक्स्ट वी हैव इवेंट ए और बी। इसका क्या मीनिंग है? ए यूनियन बी। अगर ये मेरे पास मेरा सेट है तो ये हमारे पास होएगा ए यूनियन बी। अगर इवेंट ए एंड बी आ जाए, ए एंड बी, तो वो होएगा ए इंटरसेक्शन बी, जिसको हम डिनोट करेंगे ये मिड वाले पार्ट्स। इफ आई से ए बट नॉट बी, ए तो होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। और अगर मैं कहूं बी बट नॉट ए, बी तो हो लेकिन ए ना हो। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। सो ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। सो ओनली दिस मच पोर्शन वी विल गेट। बी होना चाहिए लेकिन ए नहीं होना चाहिए। सो ओनली दिस मच पोर्शन वी गेट। Next we have exhaustive event and exclusive event. Now events with E1, E2, En associated with a random experiment with the sample space are called exhaustive events. कब बोलेंगे? जब E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू En वो किसके इक्वल हो? हमारे सैंपल स्पेस के इक्वल हो। साधारण भाषा में बोलूं तो ऐसे इवेंट जो पूरा सैंपल स्पेस कवर करते हो उसको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल इफ आई से, अगर मेरे पास S है, सैंपल स्पेस है 1 से लेके 6 तक, एंड आई हैव A 1 3 5 and I have B that is 2 4 6 and I see that is 1 3 1 2 3 4. Now suppose सैंपल स्पेस में पूरा सैंपल स्पेस कवर करना है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं, अब मुझे बताओ क्या A 1 2 3 क्या A यूनियन C जो है वो हमारे पास कौन सा इवेंट है? एग्जॉस्टिव इवेंट है या नहीं? क्या A यूनियन C हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट है या नहीं? देखो A यूनियन C क्या होगा हमारे पास? 1 3 2 4 5। यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स आने चाहिए, लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट्स है वो सिर्फ एक ही बार आने चाहिए। जैसे इसमें रिपीट कर रहा था 3 3, तो मैंने इसको सिर्फ एक बार लिखा है। क्या ये सैंपल स्पेस के इक्वल है? नहीं, सैंपल स्पेस में तो 6 भी आ रहा है लेकिन इसमें 6 नहीं है। So this is not equal to sample space. So A union C is not an exhaustive event. If I ask you A union B है, so A union B will be 1 2 3 4 5 6. Now A union B is equal to the sample space. So hence it is an exhaustive event. It is an exhaustive event. Now let us see exclusive event. Now mutually exclusive events. Two or more events are said to be mutually exclusive in the random experiment if occurrence of one excludes the occurrence of other. कहने का मतलब है एक की occurrence दूसरे को हटा देती है, exclude कर देती है, और दूसरे की event दूसरे को हटा देती है, exclude कर देती है। And intersection between, मैं इसे बताना भूल गई, A यूनियन B इसको बोलते हैं हम यूनियन, इसका मतलब होता है और। A इंटरसेक्शन B इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन, और ये रिप्रेजेंट करता है एंड। और मतलब दोनों सेट को मिला के जो भी एलिमेंट्स आए जो रिपीटेड है उसको एक टाइम लिखिए। इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं A इंटरसेक्शन B की। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का A इंटरसेक्शन B की हमारे पास क्या होता है? 5, मतलब दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। उनका सेट कैसे बनेगा? ये A पड़ा है कोने में, एक कोने में B पड़ा है, एक एलिमेंट है B के एलिमेंट है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। The occurrence of one excludes the occurrence of the other. For example
example, if I take A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 3, 4, 5, C is equal to 5, 6, 7. If I ask you A intersection B, क्या ये हमारे पास एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं? देखिए A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन B मतलब दोनों में क्या कॉमन है? 3. लेकिन एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो वो होते हैं जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन इसके बीच में तो कॉमन है 3, उसका मतलब ये एक्सक्लूसिव नहीं है. इफ आई आस्क यू A इंटरसेक्शन C, क्या एक्सक्लूसिव है? 1, 2, 3, 5, 6, 7, कुछ भी कॉमन है, 5 है कॉमन. So therefore this is an exclusive event. Now let us see one question based on this. First question. A die is rolled. Let E be the event. Die showing 4. एक die roll किया गया है. E है क्या? Die shows 4. Die 4 show कर रहा है. And F be the event. Die shows an even number. अगर die हमारे पास कोई even number show कर रहा है. Are these E and F are mutually exclusive or not? अब बच्चे कंफ्यूज आते हैं एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव में. एक्सक्लूसिव मतलब कुछ भी कॉमन नहीं, एग्जॉस्टिव मतलब पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहा है वो. एक डाई फैक्टर है तो ई सेट बनाते हैं. ई सेट क्या होएगा हमारे पास? 4 शो कर रहा है तो 4. एफ सेट क्या होएगा? इवन नंबर. इवन नंबर क्या होएगा? 2, 4, 6. क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्या इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है? नहीं, इनमें तो कॉमन है ना 4, जो 5 की इक्वल नहीं है. सो देयरफॉर इट इज नॉट mutually exclusive. Fine. In the next video I will be covering all the examples related to probability.